নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰণাম অসমলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই আগত 4টা ভিডিঅ' দিলো আৰু আজি 5 নম্বৰ ভিডিঅ'টো আন্দামান নিকোবৰৰে আৰু এইটো হৈছে নীল আইল্যান্ডৰ পৰা পৰ্ট ব্লেয়াৰ আইল্যান্ডলৈ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই আৰু মোক আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকক এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰো আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু আপোনালোকৰ কমেন্ট লাইকৰ জৰিয়তে মোক উৎসাহিত কৰিব যাতে মই আৰু আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰো এয়া ৰাতিপুৱা গা পা ধুই উঠি পানী খাই আছো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ এয়া আৰু আমি এতিয়া গৈ আছো ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আৰু ব্ৰেকফাষ্টত আমি আজি কি খাম আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাম আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ৰিপ ভেলিৰ পৰা যাব ওলাইছো আমি সাগৰত কিছু এনজয় কৰিম আকৌ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা এৰি থৈ যাবলৈ আমাৰ নিশ্চয় বেয়া লাগিব ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত আমি আছিলো সদায় এনেকৈ থাকিব পাৰিলেতো ভালে লাগিল এতিয়া আমি গৈ আছো আমি সাগৰৰ পাৰলৈ আৰু ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাম আমি কি কৰি Number 1 at all. Ma'am, phone checking दिखेगा. इवा कहाँ से? ये बाराम पैकेट तो लोगों पाए ना? अब ये बाराम पैकेट एक तो बाराम पैकेट दीजिए. দুটা দিছে দুটা এটা জাহাজত খাম ক্ৰুজত তাত বহুত দাম কেই টকা হা ইমান ধুনীয়া পোৱালি আয়ু লৈ যাব পাৰিলে লৈয়ে গ'লো ফ্লাইটত নোৱাৰিম নহয় নিবলৈ এয়া কুকুৰা পোৱালি কিনিব গ'লে কিমান দাম 8,000 10,000 লাগিব ঐ উঠ উঠা গ'লো Thank you. কি যাবি আমাৰ লগত অসমলৈ যাবি অসম চাব যাবি আমাৰ সময় হ'ল এতিয়া আমি আকৌ জাহাজত উঠিবলৈ গৈ আছো ইয়া ধুনীয়া এটা দৃশ্য ইয়া আমি উঠিলো জাহাজত আৰু আমি জাহাজৰ পৰা বাহিৰৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো
এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ পৰ্ট ব্লেয়াৰ আৰু আমি এতিয়া পৰ্ট ব্লেয়াৰত জাহাজৰ পৰা নামিম আৰু কিছু বাহিৰৰ সৌন্দৰ্য দেখুৱাম। এয়া চাওক, সাগৰৰ পাৰে পাৰে আমি গৈ আছোঁ। ধুনীয়া ঠাই, আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহিব ইয়ালৈ, এনজয় কৰিব, বৰ ধুনীয়া ঠাই। এইখনে হৈছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ কালাপানী জেল বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু কিছু ভিতৰৰ ফালে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখিনিতে আমি বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ অৱদান যথেষ্ট। আৰু আমাৰ গাইড এজন আছে, তেওঁ ধুনীয়াকৈ আমাক গাইড কৰিছে আৰু তেওঁৰ কথাখিনিও আপোনালোকে শুনক, নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাব। जेल जहाँ निर्माण है सी 11 to 620 की हाइट इंडियन फॉर प्रॉपर्टी। 1893 के समय जेल के निर्माण के समय सारे पेड़ कट चुके थे और उसमें से जो पेड़ जिन टूट गई थी जो 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अपरूट हुआ पेड़ को रिप्लांट किया गया, उसकी ट्रंक को खड़ा किया गया, उसके बाद से निकला हुआ ब्रांच है जो साउंड लाइफ का प्रोग्राम देखेंगे उसकी मेन किरदार है, एक काल्पनिक कैरेक्टर है बट फैक्ट स्टोरी को प्रेजेंट करेंगे साउंड लाइफ के। और जेल की जो लुक है इट्स लुक लाइक स्टारशिप कॉम्प्लेक्स लाइक साइकिल स्कोप। आप देख पा विंग इज 7 एक्सेगन एंड नेक्सेगन इट्स लुक लाइक दैट्स कॉल्ड सेलुलर द बायोलॉजिकल लाइफ एंटर कनेक्ट किया गया। विंग नंबर 1 and 2 इज वन कॉर्नर एंड अदर ब्लॉक्स आर इंडिविजुअल कॉर्नर एंड इजी एक्सेस होगा जो गार्ड्स होंगे कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल टावर आने के बाद वो कहीं भी एक्सप्लोर कर सके एंड वन गार्ड इन अ सेंट्रल टावर जो आउटसाइड ऑफ द सेलुलर को मॉनिटरिंग करे। जेल के कंस्ट्रक्शन वर्क 1895 में स्टार्ट हुई, 1906 में कंप्लीट किया गया। उन दिनों एस्टिमेट किया गया 5,70,352 रुपीज व्हेन दे फिनिश्ड अप मोर देन 7.5 लाख रुपीज विदाउट लेबर चार्ज ओनली मटेरियल कॉस्ट। और इस प्रेजेंट को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 तक। 1938 मैक्सिमम स्वतंत्र सेनानियों को रिहा कर दिया गया ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे डिक्लेयर इक्वल फ्रीडम। सारे फ्रीडम फाइटर्स रिहा हो गए और 39 वर्ल्ड वॉर 2 के समय इंडियन सोल्जर जहाँ पे भी थे उन्हें यूज़ करने लगे। वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ की फोर्स भी चले गई एंड 1941 इज अ मेजर अर्थक्वेक एंड अमेंडमेंट दैट्स अ बिग लॉस ऑफ ब्रिटिश पीपल। उस समय 1941 के भूकंप के कारण काफ़ी लोग यहाँ से जाने लगे, ब्रिटिश बैकआउट करने लगे एंड 1942 यहाँ पे जापानीज एंटर कर रहे हैं। जापानीज के शासनकाल 3 साल की थी, 42 से लेकर 45, और 3 सालों में सबसे ज़्यादा टॉर्चर कहा जाता है जापानीज द्वारा हुआ। यहाँ पे जितने भी इंडियंस थे जिन्हें जासूस कराने कर प्रिजन में बंद कर दिया जाता था, शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समंदर फेंकने लगे। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विजिट के समय जापानीज द्वारा यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा, वैसे नहीं बताया गया। और 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड नौ से नेताजी स्टेडियम, जहाँ पे उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद दिल्ली को शहीद दिन स्वराज दिन घोषित करते हैं। देन आफ्टर ही रिटर्न बैक मणिपुर, हिरोशिमा के बाद जापानीज भी चले गए, अगेन ब्रिटिश की शासन रही। रिपब्लिक के बाद अंडमान इंडिया के पार्ट इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद 7 दिन जो बनाया गया था उसमें से कुछ ब्लॉक 1941 की भूकंप से कुछ ब्लॉक डैमेज हुई जिसे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कुछ ब्लॉक को टोटली डेमोलिश कर वहाँ पे सरकारी अस्पताल बनवा देंगे। आउट ऑफ 7 नाउ वी हैव ओनली 3 ब्लॉक्स। ये विंग नंबर 1 है, ये 7 इसके राइट बैक साइड और एक ब्लॉक विंग नंबर 6 इन ऑल आइडेंटिकल सेल। सेल की क्या साइज है अंदर जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम फांसीगढ़ से स्टार्ट करेंगे। फांसीगढ़ देखने के बाद ये स्लोप शेड के अंदर जाएंगे जहाँ पे ऑल एक्सट्रैक्शन मिशन रखा हुआ है, फ्रीडम फाइटर्स कैसे काम करवाते देखेंगे। लास्ट हमारा एक्सप्लेन कंप्लीट होगा। सेंट्रल टावर के ग्राउंड फ्लोर में सेल और फ्रीडम फाइटर्स पहले खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं थी, ओपन प्लेस हुआ करता था। इसके अंदर ओरिजिनल हम देख पाएंगे वुडन बीम, प्लेटफॉर्म, लीवर ओरिजिनल है, रस्सी नया है। और यहाँ पे कितने स्वतंत्र सेनानियों को लाकर फांसी दिया गया ऐसे कोई रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि उन्हें फांसी देना होता उन्हें अंडमान लाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें वहीं पे कर सकते थे। ब्रिटिश की मकसद ये थे कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उन लोगों की ताकत को कमजोर करें। उनकी केसेस होते थे कॉन्स्पिरेंसी, प्लान अगेंस्ट ब्रिटिश, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 years, 8 years, 10 years की पनिशमेंट पीरियड। और यहाँ पे आने के बाद इफ दे किल समवन, किसी को हत्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और इमीडिएटली उन्हें पनिश नहीं कर सकते। एंड फर्दर ट्रायल चलेगी, न्यू चार्ज 302 और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। फर्दर ट्रायल के समय दे रेडी टू डाई फॉर द नेशन मीन दे रेडी टू मोटिवेट टू अदर। ब्रिटिश बोल रहे हैं कि इन बिटवीन द कंफर्मेशन इफ दे सपोज इफ दे आर इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग सो दे रेडी टू मोटिवेट टू अदर, वी नॉट एबल टू कंट्रोल द पीपल। अब उन्हें फांसी करके पास रखा जाए जब उनकी सोच बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माय कंट्री। वो सोच उन्हें कमजोर कर जाए, डिप्रेस में मर जाते हैं तो फाइल कम्स क्लोज। सपोज इट्स नॉट हैपन, उन्हें फांसी देना हो तो सारे धर्म में जो मरने के बाद जो धार्मिक तौर पे जो रिचुअल्स करवाते हैं आफ्टर डेथ, यहाँ पे मरने से पहले उनकी धार्मिक तौर पे रिचुअल्स व्हेन दे लाइफ दे हैव टू डू देमसेल्फ।
ये जो प्लेस है, प्लेस और लास्ट रिचुअल्स यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद इन दे अलाइव, व्हाई बिकॉज दे विल नॉट हैव फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स। सोल एंड बॉडीज आर डिफरेंट। सोल जाने के बाद बॉडी को फेंक दिया जाएगा। वो राइट्स कंप्लीट करने के बाद एक साथ 3 लोगों को हैंग कर सके। लीवर को पुल कर देंगे तो ट्रैप डोर है 8 फीट डेप्थ, जो बॉडी वेट के साथ जाएगा। सडनली गेटिंग डाउन मींस मोर चांस टू ब्रेक द सर्वाइवल पॉइंट। वंस इट इज सर्वाइव, कानूनन उन्हें फांसी नहीं दे सकते। दैट्स व्हाट रस्से के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग इस्तेमाल किया गया। रोड को कंप्रेस करेगी मेटल रिंग, स्पैल को ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडी को कलेक्ट किया जाए, एक बोरे में पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाए। तो नीचे खुल जाता था ना। ओरिजिनल है, इसमें रनिंग स्टील बदले हैं, नट एंड बोल्ट रिवेट इस्तेमाल किया जाता है। और उसके ऊपर भी वुडन प्लैंक और साइड से ओपन हुआ करता था। इसे 2 पार्ट से डिवाइड किया। एक स्टोर रूम है, आगे में एक फोटो डाल दी है। इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क, डेंजरस एंड मोस्ट डेंजर। जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जाते थे, वॉइस रेज करते थे, काम से रिफ्यूज करते थे, वैसे फ्रीडम फाइटर्स है। तो उन्हें पहले नारियल की छिलके निकालना है। इस प्रोसेस में ये जो नॉर्मली फ्रूट पिलिंग करते हैं वैसे नहीं है, ये नाइफ से कर सकते हैं या ऐसे नहीं। इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर सीधे शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट करना है। 1 or 2 कोकोनट इज ओके एंड अगेन एंड अगेन जब ये स्टार्ट फोर्सली हिट करेंगे सो नारियल स्लिप हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या होता है, हाथों में घाव पड़ जाएगी। ऐसे हिट करेंगे तो ये पोर्शन पूरी इनकी कट हो जाएगी। और इसके ऊपर की जो लेयर्स होता है आप इनसे 2 इंच की होती है। When they try to snatch, जैसे स्क्रैच करने के लगेंगे, नेल को डैमेज कर जाता था। और इसे पानी में सॉफ्ट करने के बाद वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना। पॉन्डिंग प्रोसेस में हैंड शोर हो जाएगी, हाथों में छाले पड़ जाएंगे। और ये जो रेसे होता है नॉर्मली नहीं निकलता है, जब तक ऊपर की लेयर्स जब तक रिलीज नहीं होगी ये कॉर्ड्स नॉर्मली नहीं आएगा। When they try to snatch करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था। बंच ऑफ कॉर्ड्स कलेक्ट करने के बाद you have to make a rope। रोप मेक करने के लिए इस फाइबर्स को लेकर कलेक्ट करने के बाद ऐसे फाइबर्स मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो इसको हुक करेंगे, इसमें लॉक करेंगे, ऐसे रिलीज होते जाएगा। तो ट्विस्ट होते जाएगा। ये रिलीज होने के समय उंगलियों पे घाव कर जाएगी और रोटेट करने वालों के हाथों में छाले। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई कोकोनट, 34 कोकोनट ऑयल, 10 pound मस्टर्ड सीड्स, ये उनके लिए टारगेट थी। They use 2 type of weight in the organization. They treat like oxen bull. Sorry to say, oxen bull is not possible to complete the work. When they start grinding, round and round grind करने के बाद रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके पर चाबुक चलाते थे। उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पनिशमेंट बढ़ती है। इवनिंग टाइम पनिशमेंट है। ऐसे इवनिंग मीन्स कुछ फ्रीडम फाइटर जैसे बाहर गए ब्रिटिश के हेडक्वार्टर में काम करने के लिए, शाम के वक्त उन्हें वापस लाते हैं। जैसे बकरी काटने गए, बोट ऑपरेट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क आउटसाइड भी करवाते हैं। और वापस उन्हें जब लाते हैं, यहाँ पे कोई फ्रीडम फाइटर्स उनके खिलाफ बगावत कर जाते हैं और उनकी ताकत को कैसे कमजोर कर रहे हैं। अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहे, इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहे हैं। व्हाट इज सेइंग, we are 25% British, 100% Indian people. Some people working for family, some people working for country. So देश और घर के काम करने वालों में कितने फर्क है। देश के लिए काम करने वालों के मनोबल को कभी कमजोर नहीं कर पाते हैं। Today also we have. So we allow our country, they know. We allow country, they ready to die for country. So उनकी मनोबल को कैसे कमजोर कर रहे हैं। They are convict for us, but they are working for country. उनकी सोच को कैसे ब्रेक कर रहे हैं। So they have to select in between the people. जमादार, टेंडल, गार्ड, वार्डन, पिटी ऑफिसर। उनकी सैलरीज होती थी 2 रुपए से लेकर 8 रुपए। और अंग्रेज की जगह हमारे लोग हमारे ऊपर चाबुक चला रहे हैं। वहाँ पे हमारी मनोबल कमजोर हो जाएगी। जब तक उनकी सैलरी से खून नहीं आती तब तक जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे। देखिए, जब फ्रीडम फाइटर्स बुलाते थे उनके यूनिफॉर्म के साथ इनके गले में इस तरीके से एक नेक रिंग, जिसे आज हम ऑर्डर नंबर आईडी कार्ड के नाम से जानते हैं, आईडी प्रूफ के नाम से। स्कूल्स या कंपनीज में जब हम यूज करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है। आई एम स्टडिंग दिस स्कूल, आई एम वर्किंग दिस कंपनी टुडे। वी आर जनरेटेड पॉजिटिविटी, बाय बर्थ वी हैव पॉजिटिविटी, वी फॉरगॉट दैट वन। एंड अभी आप आईडी प्रूफ पहनते हैं तो हमारे लिए प्राउड फील होता है कि आई एम वर्किंग दिस कंपनी, आई एम स्टडिंग दिस स्कूल। एंड ड्यूरिंग द टाइम इनिशियली उनकी सोच जो थी, आई एम वर्किंग फॉर कंट्री, आई एम वर्किंग फॉर माय कंट्री एंड रेडी टू डाई फॉर माय कंट्री। मतलब अपने देश के लिए वो काम करने वाले उनकी पॉजिटिविटी थॉट्स है ना, उसे कैसे कमजोर कर रहे हैं, व्हिच इज नॉट यूज्ड टू द पर्सन ही पुट समथिंग इन द नेक। When you start thinking, उनकी सोच बदल जाएगी। Something we are holding in the neck and which is not useful to us, उनकी intention बदल जाएगा। They never do anything in it. And without any permission, someone make us leave a country and उनकी गिरवा पे ऐसे कोई जागता है, अग्रेसिव हो जाएंगे तो आगे के कार्य में परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। चेन फिटर के साथ लाते थे ताकि वो रास्ते से ना एस्केप कर जाए। सेकंड पनिशमेंट, बार फिट और स्ट्रेट रॉड, जिनको बेंड नहीं कर पाते थे। एंड थर्ड वन, 16 इंचेस रॉड इन बिटवीन द लेग, अनेबल टू वॉक। और तीनों कंडीशन में इनसे काम करवाते थे। ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन इसके अलावा बाहर। और उनकी पनिशमेंट की यूनिफॉर्म होती थी बोरे का, तेज धूप के समय उनके शरीर पूरी जख्म हो जाए, इजी टू आइडेंटिफाई कंपेयर विद अदर, इज अ पनिशमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर। लाजो के साथ देखिए। जरूर
বুলি কওক জেলৰ এটা অংশ বৰ্তমান চৰকাৰে হস্পিটেল বনাই দিছে। আমি হোটেললৈ আহিলোঁ এতিয়া, এইটো ৰুম হোটেলৰ। আমি এয়া ডাইনিং হললৈ আহিছোঁ এতিয়া ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ। আপোনালোকক ডাইনিং হলৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। সকলোকে শুভৰাত্ৰি জনালোঁ।